الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو کوئی غم نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی بھی حزن و ملال نہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہمیشہ اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتے. انہی اولیاء اللہ میں سے ایک اللہ کے ولی حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. ان کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے، ان کی سیرت پر نظر ڈالی جائے تو ان کے کارنامے دل کو بھا جانے والے ہیں. یہ اللہ کے بڑے مقبول ولی ہیں. فرمایا گیا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا بڑا عجیب واقعہ علماء کرام نے لکھا. حضرت بختیاری کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے کچھ شرائط پیش کیے تھے. آج ہم مرتے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو وصیتیں کرتے ہیں، میرا مال فلا فلا کو اتنا دے دینا، میرے فلا وارث ہیں ان کو یوں کرنا تو تو کرنا. ہماری وصیتیں بھی رہتی ہیں تو دنیا داری کی رہتی ہیں. لیکن اللہ والے جب دنیا چھوڑ کر بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی وصیتیں عقلوں کو حیران کر دینے والی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ غافل ہوتے ہیں. ایک وقت تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور دینی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی تھی. آج کے اس گئے گزرے دور میں بندہ ان واقعات کو سنے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. چنانچہ حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کا واقعہ بھی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. جب حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان بھر میں کوہرام مچ گیا. جنازہ تیار ہوا اور ایسے ایک بڑے میدان میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ لایا گیا.
मखलूक मोरो मुगिस की तरह जनाजा पढ़ने के लिए निकल पड़ी थी। इंसानों का एक समंदर था जो हद्दे निगाह तक नजर आता था। यूं मालूम होता था कि एक बफरे हुए दरिया की मानिंद ये मजमा है। जब नमाज़े जनाजा पढ़ने का वक्त करीब आया तो अचानक मजमे में से एक आदमी आगे बढ़ा। मजमे में से अचानक एक आदमी आगे बढ़ा और मजमे की तरफ रुख करके कहने लगा, मैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वसी हूं। मुझे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक वसीयत की थी, लिहाजा मैं इस मजमे तक हजरत मरहूम की वो वसीयत पहुंचाना चाहता हूं। मजमा सुनने के लिए खामोश हो गया। वसीयत क्या थी तो सुनिए। वसी ने कहा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुझे ये वसीयत की थी, मेरी नमाज़े जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसके अंदर 4 खूबियां मौजूद हों। पहली खूबी ये कि तमाम जिंदगी में उसकी तकबीर ऊला कभी क़ज़ा ना हुई हो, कभी फौत ना हुई हो। तकबीर ऊला तो दूर की बात है, आज हम नमाजें ही एक सिरे से कज़ा कर डालते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। हम ये सब सुनते हैं लेकिन अमल कौन करे। तकबीर उला तो जाने दीजिए, हमारी तो नमाजें कज़ा हो जाती हैं, बल्कि बाज तो ऐसे गए गुजरे हैं कि वो परवाह ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं। फरमाया तमाम जिंदगी में उसकी तकबीर उला कभी भी कज़ा ना हुई हो। दूसरी खूबी बयान की, अगर उसके दूसरी खूबी बयान करते हुए फरमाते हैं उसकी तहज्जुद की नमाज कभी भी कज़ा ना हुई हो, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए। अल्लाहु अकबर। नमाज तहज्जुद कौन पढ़े उठकर? फजर उठकर पढ़ना तो मुश्किल पड़ती है। तीसरी खूबी बयान करते हैं कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए, मेरी नमाज जनाजा उसने पढ़ानी है जिसने जिंदगी में गैर महरम औरत पर कभी भी बुरी नजर ना डाली हो। आज हम अपने घरों से निकलते हैं, रास्तों में बैठते हैं, चौराहों पर बैठते हैं और चाय पीने की जगहों पर बैठते हैं। हम मार्केट जाते हैं, हम सोचें कि हमारा यहां बैठना या मार्केट में घूमना नियत क्या होती है। ख्वाजा साहब तो यह लिखते हैं कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी पूरी जिंदगी में गैर महरम औरत पर कभी निगाह न पड़ी हो। चौथी खूबी बयान करते हैं वो इतना इबादत गुजार हो हत्ता कि उसने असर की सुन्नतें भी कभी ना छोड़ी हो। लिहाजा जिस शख्स में ये 4 खूबियां मौजूद हो वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ाए। जब हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वसीयत मजमे को सुनाई गई तो मजमा पर सन्नाटा छा गया। मजमा ऐसे साकित हो गया जैसे सांप सूंघ गया हो। लोगों के सर झुक गए, कौन है जो कदम आगे बढ़ाए। काफी वक्त गुजर गया, उस मजमे में बड़े बड़े आलिम भी थे, हजारों की तादाद में उलमा की जमात थी, हजारों की तादाद में कारी भी थे, हजारों की तादाद में हाफिज कुरान भी थे, हज करने वाले हाजी भी थे, मुबल्लिगीन भी थे, दीनदार लोग भी थे। कोई आगे ना बढ़ा। लेकिन कोई भी शख्स नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार ना हुआ। लोग आपस में चमगोइयां करने लगे कि हजरत जी ने बड़ी सख्त शराइत के साथ बात की है, इन शराइत के साथ कोई भी हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकेगा।
दिन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा तो एक शख्स रोता हुआ आगे बढ़ा। वो कोई शख्स, वो कोई आम शख्स नहीं था, वो कोई गली कूचों में रहने वाला नहीं था, चौल में रहने वाला नहीं था, वो कोई तिजारती भी नहीं था, कोई किसान भी नहीं था, कोई आम शख्स नहीं था। वो जो शख्स आगे बढ़ा हजरत बख्तियारी काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के जनाजे के करीब आया, जनाजे की चादर हटाई और कहा, हजरत आप खुद तो फौत हो गए लेकिन मेरा राज अफशा कर गए। इसके बाद भरे मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कसम उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये चारों खूबियां मौजूद हैं। लोगों ने हैरानगी से देखा, ये वक्त के बादशाह, कोई आम शख्स नहीं था वो, बल्कि वो वक्त के बादशाह शमशुद्दीन अल-तमश रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे। गौर और फिक्र का मकाम है कि अगर बादशाही करने वाले दीनी जिंदगी गुजार सकते हैं तो फिर क्या हम दुकान चलाने वाले या फैक्ट्री चलाने वाले या दफ्तर में जाने वाले या खेती बाड़ी करने वाले ऐसी जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते। हमें दीनदारी अपनानी होगी, अल्लाह की रिजा वाले कामों में अपनी जिंदगी को लगाना होगा, तभी हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत में भी बेड़ा पार होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जिंदगी भर नेकी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।